collectively known as living things. देखो amoeba is unicellular organism. Amoeba is हाँ हाँ amoeba is हाँ amoeba is a unicellular organism. unicellular UNI, ठीक है, unicellular organism. आगे देखो, the process used by plants to synthesize their own food is known as photosynthesis, ठीक है. all living organisms respond to various kinds of stimuli. अच्छा, dash are very small plants, herbs, ठीक है, herbs are very small plants. amoeba is a plant, false. living organisms exhibit many variations due to their habits and habitats, true. many non-living things can be molded in different forms or shapes, true. many non-living things, ठीक है, like soil. ओके देखो, और all living things die, true. lotus is an example of hydrophyte, true. invertebrates do not possess backbone. देखो, invertebrates do not possess backbone, true, ठीक है, invertebrates का backbone नहीं है. take the correct question. which of these statement is true for plants? which is true? green plants are autotrophic. green plants are autotrophic. बाकी सारे गलत है, false है. नेक्स्ट, ओपन आउट पेज नंबर 120 देखो. which of these plants belong to category of shrubs? rose is a shrub. हो गया. which one among these is not a flowering plant? ना देखो, ग्रास फ्लावरिंग प्लांट है, रोज फ्लावर, मैंगो फ्लावर, एल्गी है ना, एल्गी नॉन फ्लावरिंग प्लांट, स्मॉल प्लांट्स है, एल्गी, लिचेंस, मोसेस, फार्न, दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है. बाइनियल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स व्हिच लिव फॉर 2 years. ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव क्या? बोन्स, फेदर, स्टेम्स और सेल्स. which of these is an invertebrate? snail is an invertebrate, है ना. ये तो वर्टिब्रेट है, बैकबोन है, कोबरा का है, फ्रॉग का है, स्पैरो का, ये सारे का हड्डी है. स्नेल का हड्डी है क्या? बैकबोन है? नो बैकबोन. ओके, देन टिक लगाओ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टिक लगाओ. तो डी का 1 2 3 टिक लगा रहे हो? हाँ, डी का 1 2 3 टिक मारो. इंपॉर्टेंट. नेम एनी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. द लिविंग थिंग्स, देखो, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स eat food, living things move, living things respond to stimuli, living things reproduce. कोई भी 3 state the differences between autotrophs and heterotrophs. autotrophs can prepare their own food. green plants are examples of autotrophs. heterotrophs, these are organisms, living things which cannot prepare their own food. examples are bacteria and non-green plants, and animals. these are heterotrophs. give 2 examples of each of annual, biennial and perennial plant. each of annual plant क्या क्या दे दोगे? annual plant, टोमेटो, ब्रिंजल, जो एक सीजन के लिए उगता है. टोमेटो, ब्रिंजल, कैबेज, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, सारे सब्जी जितना है, ठीक है ना. अच्छा, बायनियल 2 साल के लिए. बायनियल के लिए एग्जांपल देखो. पेरिनियल जो दोज लिव फॉर मेनी ईयर्स, दोज लिव फॉर मोर देन 2 years. तो बायनियल का क्या क्या एग्जैक्ट एग्जांपल लिखा हुआ देखो. बायनियल का लिव फॉर 2 seasons, देखो इसका एग्जांपल में क्या क्या है ना. बायनियल, दीज प्लांट्स लिव फॉर 2 seasons, है ना. इन द फर्स्ट ईयर दे हैव फुल वेजिटेटिव ग्रोथ एंड सेकेंड ईयर दे बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. कैरोट, ठीक है, 1 साल वेजिटेटिव पार्ट बढ़ेगा, है ना. रेडिश, ओके, टर्निप आर सम एग्जांपल्स ऑफ बायनियल प्लांट्स. पहले सब वेजिटेटिव पार्ट ग्रोथ होगा, सेकेंड ईयर में या सेकेंड सीजन में उसका फ्रूट, फ्लावर्स, फ्रूट, ये सब बनता है, सीड्स बनता है. ओके, सो दीज आर एग्जांपल्स हो गया. आगे देखो पेज 120. हाँ, पेज 120 हो गया ना. आगे देखो 121, पेज 121.
लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली, हाँ, जस्टिफाई दी स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स, है ना। लिविंग लिखो all living things respond to any cause or action. All living things or bodies of all living things respond or react to any cause or action. कोई भी कारण के चलते लिविंग थिंग्स का बॉडी क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, रिएक्ट करेगा फॉर एनी कॉज और एक्शन। अच्छा, एग्जाम्पल कैसे कैसे, नो इमीडिएटली ड्रैग आवर हैंड, है ना, व्हेन वी टच हॉट वाटर और फायर, or we immediately run away when we see a snake, or see a tiger, हाँ, कोई भी खतरा देखते हैं तो क्या करते हैं, भाग जाते हैं। and when we try to take any good thing, good tastes like sweets etc. और 3 वाला, राइट 2 points of difference between herbs, shrubs, है ना, herbs, shrubs and trees। तो herbs are very small plants, है ना, they have no woody stems, और shrubs are small plants, है ना, they have got soft woody stem, shrubs have soft woody stem, they form bushes, है, shrubs they form bushes। एग्जाम्पल भी दे सकता है, herbs का क्या, grasses, और हार्ब है ग्रास, बेम्बू इज ऑल्सो ग्रास, है ना, तो बेम्बू भी हार्ब्स का ही एग्जाम्पल है। बेम्बू बड़ा है लेकिन हार्ब है, इट इज ए ग्रास, इट इज ए वेराइटी ऑफ टॉल ग्रास, ठीक है, बेम्बू। ये श्राब मत लिखो, श्राब्स आर रोजेस, बोगनविला एटसेट्रा श्राब्स, है ना, और श्राब्स एंड ट्रीज, तो श्राब्स तो हो गया, ट्रीज के लिए ट्रीज आर, है ना, ट्रीज हैव लॉन्ग वुडी स्टेम, दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, है ना, और दे आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन बायनियल एंड पेरिनियल, ना बायनियल प्लांट्स लिव फॉर 2 seasons और 2 years, perennial plants live for many years, okay। Biennial plants are small, है ना, less woody, perennial plants are bigger, they have got strong woody stem, they have got woody stem, biennial have no woody stem। इस तरह से लिख सकते हैं बहुत सारे पॉइंट। अच्छा, how are vertebrates different from invertebrates? Now vertebrates have backbone, invertebrates have no backbone। Examples क्या, ना horse, giraffe, tiger etc. These are vertebrates। invertebrates क्या क्या है, insects, snails etc. okay। और एनिमल तो ये, अच्छा देखो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, कम टू वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। संची noticed a collection of leaves, Sanchi noticed a collection of leaves, grass and some teeny twigs in one corner of a school building। स्कूल बिल्डिंग के एक कोना में, है ना, सड़ा हुआ पत्ता, गिरा हुआ पत्ता, घास फूस, ये सब देखने को मिला। She was about to remove them when her teacher who was passing nearby stopped her from doing so। और तो संची ये सब को सोचा कि ये सब गंदगी है, ये सब को फेंक देना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है क्या नहीं। She should clean the school that corner because our school building should be neat and clean। तो लेकिन टीचर जो पार हो रहे थे बोला है रुको 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 रुको, है ना, उस सब को मत हटाओ, है ना। द टीचर टोल्ड हर दैट इट वाज ए नेस्ट बीइंग मेड बाय ए बर्ड टू लay its egg। मतलब वो तुम्हारा वो का कोई गंदगी नहीं है, ये क्या बनाया जा रहा है, ये एक तो नेस्ट बनने वाला है ना, घोंसला बनाया जा रहा है, टू ले एग्स बाय बर्ड्स। वहाँ क्या होगा, कोई चिड़िया वहाँ अंडा देगा। शी एडवाइज संची टू बी काइंड, और शी एडवाइज, तो टीचर उसको संची को क्या एडवाइस किया, टू बी काइंड एंड कॉन्सिडरेट, है, सहानुभूति होना चाहिए, है, दया होना चाहिए, टुवर्ड्स ऑल लिविंग बींग्स, है, कोई भी जीव के ऊपर हमें दया होना चाहिए और सहानुभूति होना चाहिए। वी शुड हेल्प देम एंड वी शुड टेक केयर ऑफ देम, ठीक है। सो लिस्ट वैल्यूज डिस्प्लेड बाय संचीज टीचर, तो संचीज टीचर इज एडुकेटेड, संचीज टीचर इज एडुकेटेड, लव्स एनिमल्स और कैरिंग, काइंड, हेल्पफुल। कैरिंग कुछ भी दे सकते हो, एक दो ठो, है ना, 2 ठो लिखोगे। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ वर्टिब्रेट, तो वर्टिब्रेट का क्या एग्जाम्पल होगा, दे दोगे, वो एक ठो बोला है, हॉर्स 2, टाइगर 2, एलिफेंट 2, जिसका बोनी स्केलेटल सिस्टम है वो वर्टिब्रेट्स है, ठीक है ना। आर इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स एंड इनवर्टिब्रेट एनिमल दैट, ओहो रुको रुको रुको, यहाँ पर क्या बोला, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट एनिमल दैट रिप्रोड्यूस थ्रू एग्स। तो वर्टिब्रेट रिप्रोड्यूस थ्रू एग्स क्या हो जाएगा, वर्टिब्रेट्स रिप्रोड्यूस थ्रू एग्स क्या बोलो, हेन, डक, बर्ड्स होगा ना, वो सब वर्टिब्रेट्स है। लिखो बर्ड, इसमें लिखो बर्ड,
ये वर्टिब्रेट, ये हॉर्स लिखा हुआ, हॉर्स गलत हो जाएगा। दैट given one example of a vertebrate and invertebrate, that invertebrate animal that reproduce through eggs। तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिब्रेट में लिखो बर्ड्स, बर्ड्स BIRDS, बर्ड्स, कोई भी बर्ड जम हैन दो, हैं डक दो, हैं। अच्छा इनवर्टिब्रेट एनिमल, इनवर्टिब्रेट स्नेल, इनवर्टिब्रेट क्या हो जाएगा, स्नेल। स्नेल का हड्डी नहीं है, बोनी सिस्टम नहीं है, स्केलेटल सिस्टम नहीं है, बट इट लेज एग, ओके, स्नेल्स, इनवर्टिब्रेट। Many insects also lay eggs, okay, insects are invertebrates। अच्छा तो ये वाला में पहले क्या लिखो, पहले वाला में लिखो हैन लिखो, डक लिखो, या कोई भी बर्ड का नाम दे सकते हो, बर्ड्स ले एग, और क्रोकोडाइल ऑल्सो ले एग, ओके, क्रोकोडाइल ऑल्सो इट इज वर्टिब्रेट एंड ले एग्स, क्रोकोडाइल। फिशेस ले एग्स होगा ना, ये सारे जो अंडा देने वाला, वर्टिब्रेट ऐसा जो अंडा देने वाला है। और देखो स्टेट द रीजन दैट माइट हैव मेड संची थिंक ऑफ रिमूविंग द कलेक्शन ऑफ leaves, twigs, etc. from the corner of the school building। She thought that these are all dirty things, they are making the environment what, dirty, so she should clean them। She thought of cleaning because she thought it is making school building dirty, it is looking dirty, dirty, dirty। हो गया। तो चलो चैप्टर 9 में चलो, चैप्टर क्या है, 8, चैप्टर 8 में आ जाओ। देखो इसका चैप्टर 7 का डायग्राम था कुछ, was there any diagram in chapter 7? नो इम्पोर्टेंट डायग्राम। हम दिए थे दो है ना, एमीबा और ऑनियन पील दिए थे, पेज 104 है ना, इम्पोर्टेंट डायग्राम दिए थे, लेकिन उतना खास कोई ये नहीं है। इससे अच्छा डायग्राम है चैप्टर 8 में, चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 का डायग्राम देखो क्या क्या है, देखो ये वाला फ्लावरिंग प्लांट और टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ठीक। जर्मिनेशन वाला उतना नहीं है, वो तो 5 में ही है जर्मिनेशन वाला, तो 6 के लिए थोड़ा नया होगा। हाँ ये तो सब बच्चा 3 to हर क्लास में रहता है, इसलिए इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है फ्लावरिंग प्लांट का। और इसका लीफ का डायग्राम ऑफ लीफ, ठीक है, ये डिलीटेड नहीं है, लीफ हमारा पोर्शन में है, तो लीफ का इतना हो जाएगा, ठीक। और देखो चैप्टर ये 137 पेज नंबर 137 निकालो, देखते हैं कितना आया कितना गया, फोटो ले लेते हैं। तो सुप्रिया तक है, सुप्रिया तक आ गया, सुप्रिया के बाद कौन कौन है, सुप्रिया के बाद विशाल भी बचा हुआ है। अच्छा ठीक है, चलो विशाल हाँ सुन रहा ना? यस सर। हाँ वेरी गुड। देखो तुम्हारा माँ कितना इंटरेस्ट लेती है पढ़ाई लिखाई में, है मीटिंग में आई थी, बहुत कुछ बोली, वेरी गुड। चलो अच्छा देखो मेज, व्हीट, राइस आर एग्जाम्पल्स ऑफ, देखो मेज, व्हीट, राइस आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट टाइप ऑफ रूट्स, बोल दो विशाल, व्हाट टाइप ऑफ रूट्स? फाइब्रस, हाँ फाइब्रस रूट, ठीक है, एंड बंच ऑफ हेयर लाइक रूट्स विच कम अप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम्स, है स्टेम बेस से जो निकल एक साथ निकलता है, बहुत सारे रूट्स हैं, हेयरी रूट्स, पतला पतला जो जड़ होगा। जिंजर एंड पोटैटो आर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। द मेन फंक्शन ऑफ डैश इज टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, क्या होगा? लीफ क्या रे? लीफ, हाँ लीफ। द मेन फंक्शन ऑफ लीफ इज टू प्रिपेयर फूड ऑफ द प्लांट। बेनियन ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रेस रूट, प्रॉप रूट, है ना, उसमें टैप रूट भी है, लेकिन प्रॉप रूट के चलते बेनियन ट्री फेमस है ना। अच्छा डैश इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लावर। लीव्स ऑफ कैक्टी आर मॉडिफाइड इनटू, ये इंपॉर्टेंट है, लीव्स ऑफ कैक्टी आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, पत्ता कांटीला बन जाता है, स्पाइन कांटा बन जाता है। द लीफ ब्लेड इज ऑल्सो कॉल्ड लेमिना, ओके। अच्छा ट्रू फॉल्स देखो,
ऑल प्लांट्स पोजेस द टैप रूट सिस्टम, फॉल्स। सब प्लांट का टैप रूट सिस्टम है क्या? बोलो। नो, ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव टैप रूट सिस्टम। ओके, देन द व्हीट एंड मेज प्लांट्स हैव फाइब्रस रूट सिस्टम। ट्रू, फाइब्रस रूट है व्हीट का, मेज का। है कैक्टस प्लांट फोटोसिंथेसाइज थ्रू देयर स्टेम। ट्रू है ना, कैक्टस का लीफ नहीं होता है, ग्रीन स्टेम होता है, तो ग्रीन स्टेम ही क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस कर लेता है, तो ट्रू हो जाएगा। लीव्स मैन्युफैक्चर फूड फॉर देमसेल्व्स। फॉल्स, लीव्स हमारे लिए भी खाना पकाता है। अच्छा, फ्लावर इज मींट फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। ट्रू है ना, फ्लावर से ही बीज बनता है, रिप्रोडक्शन। एवरी सीड हैज ए बेबी प्लांट। ओके, द पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ट्रू। स्टिग्मा एंड ओवारी हैव नो रोल इन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फॉल्स, स्टिग्मा ओवारी तो मेन रोल होता है ना। स्टिग्मा इज द फीमेल पार्ट, ओवारी इज द ओवारी। स्टिग्मा एंड ओवारी तो ये फीमेल पार्ट्स है ना, दे हैव रोल इन द प्लांट। अच्छा, सीड स्टोर फूड फॉर द फ्यूचर प्लांट। ट्रू, कोटिलिडन्स हैव स्टोर्ड फूड फॉर द बेबी प्लांट। ट्रू ट्रू हो जाएगा। अच्छा, आगे देखो, टिक मार्क वाला तो किया ही हुआ है। आगे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धागा लगाओ तो डी का फोर देखो, डी का फोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। D4 स्टेट द रोल ऑफ स्पाइन्स इन द मॉडिफाइड लीव्स। ठीक है, और हाँ, नेम टू मेन टाइप, ये तो छोटा छोटा आंसर है। टू सिस्टम्स इन प्लांट, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शूट सिस्टम, स्टेम, लीव्स, डिफरेंट टाइप, तो सब स्टेट द डिफरेंस। ई का 1 देखो, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन टू मेन सिस्टम्स ऑफ प्लांट, यानी रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। टू मेन सिस्टम्स ऑफ प्लांट मतलब क्या? डिफरेंसेस बिटवीन, राइट डिफरेंसेस बिटवीन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ओके, आगे देखो, डिफाइन रूट सिस्टम, गिव टू फंक्शंस, ये तो सब आता ही है। हाउ इज ए टैप रूट डिफरेंट फ्रॉम फाइब्रस रूट सिस्टम, है ना। टैप रूट और फाइब्रस रूट का डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड